سب سے پہلے بات کریں پنجاب بچانے کا مشن ہے اور لاہور میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ چکا ہے۔ بڑے بڑوں نے لاہور میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ شہباز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان ان ایکشن ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا جو کہ اب ختم ہو گیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی اور موجودہ سیاسی صورتحال پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 بجے منعقد ہوگا۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیاسی گرما گرمی کا مزید احوال ان سے جانیں گے۔ بتائیے گا عمر اسلم۔ جی بالکل، لاہور کے حوالے سے اگر بات کریں تو موسم تو سرد ہے لیکن سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ انتہائی گرم ہے۔ لاہور اس وقت ملکی سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے اہم تمام لیڈر جو ہیں اس وقت جو ہے وہ لاہور میں ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے ہیں، لیکن اس سے قبل انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ایک انتہائی اہم اجلاس کیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ لاہور کل پہنچ چکے ہیں۔ میاں شہباز شریف کی اسی طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف بھی عمران خان بھی زمان پاک میں موجود ہیں۔ بات کریں تخت لاہور کی، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ 23 دسمبر کو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا، تو اسی سلسلے میں پنجاب اسمبلی کا جو اس کو تحلیل کرنے کے حوالے سے کس طریقے سے روکنا ہے، اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک اہم مشاورتی اجلاس پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ان کی رہائش کا 96H ماڈل ٹاؤن میں اب سے کچھ دیر قبل ہوا۔ اس 1 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ یہ اجلاس جاری رہا، جس میں پاکستان کے مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے اور سینئر اہم رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں مشاورت کی گئی کہ جو عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو 23 دسمبر کو تحلیل کر دیا جائے گا، تو اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کی مشاورت کی گئی ہے کہ تمام آئینی اور قانونی آپشنز کو استعمال کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کی کو تحلیل ہونے سے روکنے کے لیے۔ ذرائع کے مطابق یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام آئینی اور قانونی آپشنز کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ اجلاس میں اگر شرکا کے حوالے سے بات کریں تو وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، سابق وفاقی وزیر قانون جو ہے زاہد حامد، امجد پرویز ایڈوکیٹ، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما معاون خصوصی وزیر اعظم جو ہیں ملک احمد خان عطا اللہ تارڑ، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مسعود احمد خان، عظما بخاری سمیت جو ہے وہ خواجہ سلمان رفیق سمیت دیگر جو ہیں وہ شریک ہیں۔ اجلاس میں جو ہے وہ مشاورت اس کے حوالے سے کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے عمر اسلم، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فصیح اللہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا رخ کریں گے، ان کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں تمام تر سچویشن کے حوالے سے ان سے جان لیں گے۔ بتائیے گا فصیح اللہ، سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی آج، کیا اسٹریٹجی بنتی دیکھ رہے ہیں، صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ آج بالکل سیاسی توڑ جوڑ جاری ہے اور نمبر گیمز کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں وہ متحرک ہیں، اور اسی حوالے سے اگر عمران خان کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے بھی آج اہم رہنماؤں کو بلایا گیا ہے، اور گزشتہ جو پرویز الہی کے بیانات ہیں اس حوالے سے سینیریو تھوڑا تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اسی حوالے سے آج انہوں نے جو ہے وہ سینئر رہنماؤں کو زمان پاک طلب کیا اور ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور مشاورت کی جائے گی کہ کس طرح اس جو تحلیل کے معاملہ ہے اس کو پایا تک میل تک پہنچانا ہے۔ دوسری جانب اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو سابق صدر آصف علی زرداری بھی گزشتہ روز سے لاہور میں قیام پذیر ہے، اور آج ان کی جانب سے بھی پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ بلاول ہاؤس بیریئر ٹاؤن میں طلب کر لیا گیا ہے، اور تمام جو پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی ہیں جس میں سید حسن مرزا، سید حیدر گیلانی، ممتاز علی چاند سمیت دیگر جو 7 اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو جو ہے وہ بلاول ہاؤس بلوا لیا گیا ہے۔ ان کو بھی آصف علی زرداری کی جانب سے آئندہ کے لائحہ عمل پر بریفنگ دی جائے گی اور کس طرح جو ہے وہ ووٹ کا عمل ہوگا یا جو نمبر گیمز کو پورے کرنے کے حوالے سے معاملات ہوں گے اس کو دیکھا جائے گا، اور قانونی اور آئینی مشاورت کی جائے گی، اور جو پارٹی کی پالیسی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو آصف علی زرداری کی جانب سے آگاہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فصیح اللہ، ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ عمر اسلم نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو سابق صدر آصف علی زرداری لاہور میں قیام، آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے اراکین پنجاب اسمبلی آصف علی زرداری سے ملاقات بھی کریں گے۔ پیپلز پارٹی پنجاب اور لاہور کے عہدیدار بھی ملاقات کریں گے، ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے اراکین پنجاب اسمبلی آصف علی زرداری سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور پیپلز پارٹی پنجاب اور لاہور کے عہدیدار بھی ملاقات کریں گے
اور जो सियासी सूरत हाल है उस पर मुशावरत की जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रात गए वजीर आजम के साथ बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चौधरी शुजात हुसैन के पास जा पहुंचे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। पंजाब की सूरत हाल पर हतमी फैसला चौधरी शुजात की रजामंदी से मशरूत है, ये कहा गया उनकी जानिब से, जबकि कायदी ने कहा कि मुल्क में किसी को सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं देंगे। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रात गए वजीर आजम के साथ बैठक हुई और वजीर आजम शहबाज शरीफ भी चौधरी शुजात हुसैन के पास जा पहुंचे, ये मुलाकात की, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। अहम मुलाकातें हो रही हैं और पंजाब की सूरत हाल पर हतमी फैसला चौधरी शुजात हुसैन की रजामंदी से मशरूत करार दिया गया है। मुल्क में किसी को सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। कायदीन की जानिब से ये मुशावरत की गई और इस बात पर इत्तेफाक किया गया। उधर एहतसाब अदालत के बाहर साबिक वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला परवेज़ इलाही ने कहा कि उस्मान बुज़दार सारी खराबियों के जिम्मेदार हैं। सहाफ़ी की जानिब से ये सवाल था, मेरे सीने में बहुत से राज दफन हैं, सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं कि इन बातों के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप पैगाम मोहब्बत दे रहे हैं लेकिन आगे से पत्थर आ रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हर किसी के ज़र्फ़ की बात है, कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल में 3.5 साल से ज़्यादा अरसा मैंने सूबे की खिदमत की है और मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो किया, रिकॉर्ड डेवलपमेंट कराई, गुड गवर्नेंस, और यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की है। लिहाजा मैं अपने तमाम कुलीग्स का बड़े दिल से एहतराम करता हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके साथ हम चल के आगे चीज़ों को बेहतर करेंगे। मेरे ख्याल में मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, ये मौका मुनासिब नहीं है कि मैं इस तरह की बात यहाँ आज करूँ। तो मेरी तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँची और सबका मैं दिल से एहतराम करता हूँ। आप मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, आगे से पत्थर आ रहे हैं, फिर भी आप उफ तक नहीं कर रहे, क्या वजह है? ये देख लें, हर किसी के अपने दिल की बात होती है, ये ज़मीर की बात होती है कि कौन क्या कहता है। बट मैंने कभी ना किसी के ख़िलाफ़ बात की है और ना मैं आज कोई इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ किसी के ख़िलाफ़। हमने बेहतरी इस सूबे की और इस कौम की खिदमत की है और हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको हम आगे लेके आवाम की मज़ीद खिदमत करें। जो मेरे पे तनकीद होती है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के ऊपर तनकीद की जा रही होती है। अच्छा, तहसील नाज़म के हवाले से वो आप मानते हैं कि उनके एहसानात हैं? वो कहते हैं जी हमने तो बड़े एहसान किए उन पर, उनके वालिद पर। देखें जी, 2001 में मैं तहसील नाज़िम बना, उस वक्त चौधरी साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। मैं दूसरी दफ़ा भी तहसील नाज़िम मुंतखब हुआ, जब मैं हार गया तो फिर मुझे जिताया कैसे गया है। अच्छा, गुजरात का सिर्फ ये बता दें सर, गुजरात में वो बड़ा कह रहे हैं कि जी हमारे जो फंड्स हैं वो बुज़दार साहब ने रोके हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, पूरे सूबे की खिदमत की है और मैंने इक्वली डेवलपमेंट कराई है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज दिया है और इतनी डेवलपमेंट मेरे दौर में हुई है। मेरे ख्याल में ये रिकॉर्ड शायद ही पंजाब की हिस्ट्री में। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं, सूरज की तेज़ किरणें पड़ने पर धुंध छट गई है, रास्ते खुल गए हैं, मोटरवे के तमाम सेक्शन भी खोल दिए गए हैं। M2 को 13 घंटे बंद रखा गया। शाहदरा चौक, पुराने रावी पुल पर वार्डन्स की भारी नफरी तैनात रही, तो 13 घंटे तक मोटरवे बंद रही, जिसको अब खोल दिया गया है। और जैसे ही धुंध में कमी आई है, रास्ते खुल गए हैं, मोटरवे के तमाम सेक्शन खोले गए हैं और M2 को 13 घंटे बंद रखा गया। शाहदरा चौक, पुराने रावी पुल पर भी वार्डन्स की भारी नफरी तैनात रही। ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं मोटरवे पर, जहां पर शहरियों की जानिब से रश लगा रहा, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। जैसे ही 13 घंटे बाद मोटरवे खुली है तो ट्रैफिक रवां दवा हुई है और तमाम सेक्शंस जहां पे मोटरवे बंद थी उसको सूरज की तेज़ किरणों के बाद धुंध छटी और खोला गया है। रास्ते खुलने के बाद ट्रैफिक रवां दवा हुई है। M2 को 13 घंटे बंद रखा गया और आपको बताएं कि शाहदरा चौक, पुराने रावी पुल पर वार्डन्स की भी भारी नफरी तैनात रही।
अभी बात करेंगे स्मॉग के हवाले से, तो स्मॉग ने शहर लाहौर की जान नहीं छोड़ी। AQI की शरह 299 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदगी के एतबार से तीसरे नंबर पर है। कोट लखपत 588, FC कॉलेज 512, जौहर टाउन में 427 AQI की शरह रिकॉर्ड की गई है। US काउंसलेट 420, मरातब अली रोड 335 AQI रिकॉर्ड किया गया है। मौसम में खुनकी बरकरार है और दर्जा हरारत की बात करें तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे, कोमल असलम हमारे साथ हैं। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर पर फ़िज़ाई आलूदगी के बादल जो हैं वो ताहाल मंडला रहे हैं। फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ स्मोक में इजाफा भी देखा जा रहा है। लाहौर में AQI की शरह 299 रिकॉर्ड की गई है और बागों का शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ों के हवाले से बात की जाए तो इसमें कोट लखपत 588, खाना सलीम 486, लाहौर अमेरिकन स्कूल 450, जौहर टाउन में 427, US कौंसुलेट में 420, सैयद मरातब अली रोड में 335, जबकि किनार बैंक हाउसिंग स्कीम में 334 AQI की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। शहरियों को मास्क के हवाले से हिदायत की जा रही हैं। वहीं अब बढ़ती हुई स्मोक पर, चूँकि अब आने वाले दिनों में मज़ीद स्मोक बढ़नी है, तो उसके हवाले से शहरियों को हिदायत की जा रही हैं कि दौरान सफ़र ख़ास तौर पर ख़याल करें स्पीड लिमिट का और फॉग लाइट्स का। मौसम के हवाले से बात करूं तो सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचोली का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है और अब फॉग के बादल जो हैं वो भी तकरीबन हम कह सकते हैं कि अब पहले जो सुबह के औकात में हद निगाह में कमी देखी जा रही थी, अभी जो है वो उसमें बेहतरी देखने में नज़र आ रही है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि जब शहर लाहौर में बारिश बरसेगी तो फॉग से भरा होगा और साथ ही साथ। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। शहर में स्मॉग और धुंध से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर होना शुरू हो गया है। लेस्को के मुतादिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो रही है। क्या वजह बताई जा रही है? शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। शाहिद सिपरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में पड़ने वाली स्मोक और धुंध की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मुतासर होना शुरू हो गया। ज़रा ने बताया है कि धुंध की शिद्दत बढ़ने के बाद लेस्को के 11 kV फीडर्स की ट्रिपिंग के साथ साथ 132 kV की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें भी फ़नी और तकनीकी खराबियां पैदा होना शुरू हो गई हैं और उसके बाद सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने मज़ीद बताया है कि जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ट्रांसमिशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जाती है और बिलखसूस दरख्तों की टहनियों की कटाई की जाती है जो ट्रांसमिशन लाइंस के साथ टकरा रही होती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि जो डिस्क इंसुलेटर्स हैं, चाहे 11 kV फीडर्स पर नस्ब हैं, चाहे 132 kV के ट्रांसमिशन सिस्टम पर वो मौजूद हैं, तो उनकी सफाई का काम इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। जब स्मोक होती है तो गर्द जो है वो उन डिस्क इंसुलेटर्स पर मौजूद होती है और जैसे ही धुंध उन पर गिरती है तो वो पानी बनकर डिस्क इंसुलेटर्स में फ़नी और तकनीकी खराबियों का बाइस बनती है। तो इस तरह आज जो हालात गुजर रहे हैं उसमें डिस्क इंसुलेटर्स में जो फ़नी खराबियाँ पैदा हो रही हैं उसके बाद सार्फिन को बिजली की तवील बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से डिस्क इंसुलेटर्स की सफाई के लिए मुहिम भी शुरू की गई है और सिर्फ इतवार के रोज़ शहर के 2 ग्रिड स्टेशन को बंद करके सफाई का काम किया जा रहा है। लेकिन चूँकि स्मोक और धुंध की शिद्दत में गुज़श्ता रोज़ से अचानक इजाफा देखने में आया है और उसके बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम मज़ीद ट्रिप हो रहा है और सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश का सामना पड़ रहा है। बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा।